Okay. Philippians chapter 4 verse 9 says, the things which you have heard and received and learned and received and heard from me, practice these things and the God of peace shall be with you. जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी, मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। This is a wonderful testimony which the Apostle Paul is telling the church at Philippi, the brothers and sisters at Philippi. तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया वचन है जो फिलिपियो की कलीसिया से भाई बहनों से बता रहे हैं, पौलुस कह रहे हैं उनसे। They received a lot of blessing, physical blessing, spiritual blessing, healings, and they received so much of instruction. They have learned so many things and heard so many things from the Apostle Paul. और बहुत सारे जो है उन्होंने शारीरिक आशीष से पाया, और बहुत सारे पौलुस ने जो भी बताए उनको सुना भी, इन सब बातों को उन्होंने ध्यान दिया। So now what they are supposed to do with all that? तो उनको इसके बाद उनको क्या करना चाहिए था? The Apostle said, you practice these things. तो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि आपको इनका अनुकरण पालन करना चाहिए। So that is the main thing that we have to do after hearing the word of God. We have to practice it when the Holy Spirit speaks to us. We have got practical things to do in our office work, in our homework, and the deal with other people and the church. We have to practice what we have heard. और इसलिए जो भी हम प्रभु का वचन सुनते हैं, उसके बाद उसको हमें पालन करना चाहिए, या भाइयों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, तो हमें उसका पालन करना ही ज्यादा महत्व है। And then he said, and the God of peace shall be with you. और फिर बताता है कि तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। So my dear brothers, we are all learning. और इसलिए भाइयों हम सब जो है प्रभु से सीख रहे हैं। We are learning, but the more to learn better, we have to keep on practicing. और अगर हम जितना अच्छे सीखेंगे और जितना पालन करेंगे, उतना ही हम जीवन में अच्छे से उसे पालन कर पाएंगे। We know as people go to school, children go to school, they learn things and they have to practice. जैसे बच्चे लोग जो स्कूल में जाते हैं और वहां पे जाके उनको सीखते हैं, उसका पालन करते हैं। If you want to learn music, you have to practice it. अगर आपको संगीत सीखना है तो उसके लिए आपको जरूर प्रयास करना पड़ेगा। In every area of our life, we have to learn to practice. Then we learn more and more. और हर एक क्षेत्रों में आपको उस क्षेत्र में पालन करना होगा, तभी आप उस बात को सीख पाएंगे, जान पाएंगे। Same thing in our spiritual life. इसी प्रकार से आत्मिक जीवन में भी होता है। Suddenly we are not going to become mature, but with regular practice we will become like Jesus Christ. अचानक से आप पूरी तौर पे आत्मिक नहीं बन जाएंगे जब तक कि आप उसे अभ्यास न करेंगे, आप प्रयास न करेंगे। Jesus told us to take up our cross daily. यीशु ने कहा, अपना क्रूस हर दिन उठाकर मेरे पीछे आओ। That is to deny my own will and do what the will of God is. ये वचन बताता है कि हमें अपनी इच्छा को मार के जो प्रभु की इच्छा है वो इच्छा करना है। That is our daily practice in so many areas of our life. और ये हर दिन का जो अभ्यास है, हमें पूरे जीवन के क्षेत्र में करना आवश्यक है। Why are we to practice? Because we are not yet mature. We are got full of faults, and the faults have to go in our life. The sins have to go. Bad habits have to go. We have to practice. और हमें अभ्यास करने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हमारे बहुत सारे जीवन में हम सही नहीं है, और क्षेत्रों में बहुत सारे जगह पे हम सिद्ध नहीं हुए हैं। Not only about sin, but also bad habits that we have. और पाप ही नहीं, बल्कि बहुत सारे हमारे गलत आदतें हैं हमारे जीवन में। For example, one common the worst sin that we have, and the most all of us have, is the sin of pride. और सबसे खतरनाक जो पाप है हमारे जीवन, वो है घमंड। And it is so silent and so subtle that sometimes we are not also aware that we are proud. और हम कई बार इस क्षेत्र में हम बहुत ही शांत रहते हैं और सोचते हैं कि हम उसके बारे में हम अनजान रहते हैं, और बहुत सारे वो पाप है जो है घमंड है, हम छिपाते हैं। But the Holy Spirit shows us where we are proud and arrogant. That's why we don't receive grace from God. लेकिन पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आप कहाँ पे घमंडी हो, घमंड में हो। That is why Jesus told us in Matthew chapter 11, come to me and learn from me, for I am humble in heart and meek in heart.
इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती के अध्याय 11 में बताते हैं कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। If we have to learn to be get rid of our pride, we have to learn to humble ourselves and learn from Jesus. और यदि आप घमंड के ऊपर जयवंत होना चाहते हैं तो आपको यीशु से नम्रता और दीनता सीखना बहुत आवश्यक है। From the first day of our Christian life to the last day of our Christian life. मसीह जीवन की शुरुआत से लेके आखिरी सांस तक। So the apostle Peter said that in 1 Peter chapter 5, पहला पत्रस में हम जाएंगे जहाँ पे प्रेरित पत्रस बताते हैं। verse 6. अध्याय 5 में वचन 6। Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you at the proper time. इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिसे वह उचित समय पर आपको बढ़ाए। So we have to humble ourselves. तो हमें खुद से हमें नम्र होना होगा। That is a practice we have to do, humbling ourselves. और ये हर दिन का प्रयास है अपने आप को नम्रता में जीवन जीने के लिए। When we look at Jesus, he was so humble that we also have to humble ourselves in all our circumstances of life. जब आप यीशु को देखते हैं तो कैसे किस प्रकार से हर एक जीवन में वो नम्र थे, वैसे ही हमें भी हर क्षेत्र में जीवन में नम्र रहना बहुत आवश्यक है। And then the humility will become a nature in our own life. और फिर नम्रता जो है हमारे जीवन का एक भाग बन जाएगा और हम नम्रता से प्रभु के अधीन रहेंगे। Because God gives grace and help to the humble. क्योंकि प्रभु जो है अनुग्रह और जो सहायता है वो नम्र लोगों को ही देते हैं। God loves people, God values people who have got a humble spirit and a quiet spirit. और परमेश्वर जो है शांत आत्मा और नम्र जो है उनको ही परमेश्वर अनुग्रह देते हैं। So that becomes a part of our nature if we keep on practicing. और ये हमारे जीवन का हर दिन का एक भाग बन जाएगा अगर हम उस पे प्रयास अभ्यास करते रहें तो। When we become born again Christians, we become humble ourselves. First thing we do is to humble ourselves and become like a child, and then we enter the kingdom of God. जब हमारा नया जन्म होता है तो सबसे पहले हम प्रभु के अधीन में नम्रता से रहते हैं, प्रभु के राज्य में हम रहते हैं। But our lives are full of pride in so many areas. लेकिन हमारे जीवन में अभी भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे हम बहुत सारे जगह पे अपने आप को घमंड करते हैं। So there are so many situations of my life, in my home and my workplace, in the church and many other places. God shows what my pride is. और बहुत सारे क्षेत्र में काम पर, घर में, राहों में और चर्च में, भाइयों की संगति में बहुत सारी जगह पे हमारे घमंड को परमेश्वर दिखाते हैं। We don't like to say sorry. We don't like to apologize. We like try to hide our faults. और हम जो है माफी मांगते नहीं है, ना ही हम सॉरी बोलते हैं, ना ही हम किसी के पास जिससे गलतियां किया है माफी मांगते हैं। हम इस पाप को छुपाना चाहते हैं। We think what we are thinking and our ideas are the right things. क्योंकि हम जो सोचते हैं अपने विचार में सोचते हैं मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, ऐसा विचार रखते हैं। So all of us have got this thing in our own flesh, and that is why we have to humble ourselves every day. और ये सब जो शरीर की अभिलाषा है, इसलिए हमें जो है प्रभु के अधीन होना बहुत आवश्यक है। The Apostle Paul was such a godly man that he told the Philippians, "You learn, see how I lived. I humbled myself in so many trials, problems, situations, and you also imitate me, and you also practice this in your own life." और जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस भी बता रहा था कि कैसे मैंने अपने जीवन में नम्रता को सीखा है, प्रभु के अधीन रहना सीखा है, तुम भी मन फिरा के अपने नम्रता में जीवन जी सकते हो। So in different areas of the life, when we practice these things, we find that we get that nature of God. और बहुत सारे क्षेत्र में जब हम अभ्यास करते रहते हैं तो परमेश्वर का जो स्वभाव है वो हमारे जीवन में आ जाता है। Without practice, without obedience, we will get nothing, and God will never give us His nature. और अगर हम आज्ञा नहीं पालन करेंगे तो हमें परमेश्वर का जो यीशु का स्वभाव है हमारे जीवन में फिर कभी भी नहीं आएगा। When the Lord tells us to run away from youthful lust, we have to run away. और जैसे प्रभु का वचन कहता है जवानी की अभिलाषा से भागो, तो हमें भाग जाना है। There are so many sexual desires and photographs we like to see, and the YouTube and so many other places that we are attracted to.
बहुत सारे अश्लील चित्र, गंदे चित्र और मोबाइल्स में, यूट्यूब पे और बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो गंदे गंदे चित्र आते हैं उसे हम देख के आकर्षण होते हैं। And then we like that, but we keep on seeing that, we find that we fall into all sorts of sins. और हम उसको क्या करते हैं, देखते रहते हैं और बहुत देखने के बाद लालसा में आके बहुत सारे पाप में गिर जाते हैं। So the Bible says we have to run away from this, flee from youthful lusts. लेकिन बाइबल बताता है कि आप उससे भाग जाएं। That means we have to immediately when we go, we have not to go there. We have to practice that. और हमें तुरंत ही वहां से उससे हमें भागना, मतलब हमें प्रयास करना, उससे अलग रहना है। Practice that, then we'll find that these things will not have an attraction to us. और हमें अभ्यास करते रहना है, तभी आपके जीवन में वो फिर कभी नहीं आएगा। In the past, we are busy practicing, watching all these things, and that's why our heart was so contaminated and full of sin. हमारे पिछले जीवन में हर प्रकार की जो बुराई है और अश्लील चीजें, फोनोग्राफी, ये सब हम देखने में व्यस्त थे। Nobody knew it, but God will not give us the Holy Spirit when we do all these wrong things. हो सकता है कोई आपको नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर जो है आपको अनुग्रह नहीं देंगे क्योंकि वो सब देख रहे हैं। And then we find that when we practice these things, we find that our minds are clear and our attitudes are clear to people, and we look at the opposite sex with a pure attitude. और जब हम इस प्रकार से पालन करेंगे प्रभु के अधीन में, तब पवित्र आत्मा हमें देगा और तब हम इस बात को अनुभव कर पाएंगे। God gives grace to the humble. क्योंकि परमेश्वर जो है सिर्फ नम्र लोगों को ही अनुग्रह देते हैं। And to be humble is not a feeling, but an obedience to the word of God. ये नम्र होना एक भावना नहीं है, ना ही ये महसूस करना है, बल्कि ये परमेश्वर के वचन को पालन करना है। When we do what God says, then we become humble. जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, तब हम प्रभु के अधीन हो पाते हैं। When keep on doing that, we become more and more humble. और जैसे ही हम प्रभु के वचन को पालन करते जाते, तभी हम प्रभु के अधीन नम्रता से जीवन जीते हैं। Sometimes we cannot rejoice in every situation. कई बार ऐसा भी हमारी लाइफ में आता है कि हम कई बार आनंद से नहीं रह पाते हैं। Philippians says that rejoice in the Lord always. लेकिन फिलिपियों के अध्याय में बताता है कि हमें हर समय आनंद रहना चाहिए। Philippians 4:4. और फिलिपियों के अध्याय 4:4, Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। The Apostle Paul could say that because he rejoiced. He was practicing that all his life through all the different tribulations and problems that he went through in his personal life, through harassment. He could rejoice in the Lord. और प्रेरित पौलुस इस बात को इस प्रकार से कह पाया क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पूरी तरह से प्रभु का अभ्यास किया था वचनों को पालन करके, और वो बहुत ही आनंदित है और बोल भी रहे कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। Even when he was in lot of physical pain, he could rejoice. और हो सकता है बहुत सारे दुखों से, शारीरिक दुखों से भी गए, लेकिन फिर भी कहते हमेशा प्रभु में आनंदित रहो। He was not feeling sad and feeling self-pity and sitting over there, but he said, Lord God, I thank you that you are my God. You have allowed me these things in my life through sickness, through troubles and pain. I worship you, I praise you. और जब कभी भी प्रेरित पौलुस दुखों से, संकट से और बीमारियों से गुजरते थे या ऐसी सताव से गुजरते थे, फिर भी वो प्रभु के में आनंदित रहे थे और कहते थे, थैंक यू परमेश्वर, आपने मेरे जीवन में आने दिया। So he told the Philippians also, you have seen how much of suffering I had gone through and how I rejoiced and how God blessed me, and then you also practice the same things. और प्रेरित पौलुस बता रहे थे कि देखो मैं किस तरह प्रकार से सब दुखों से गया हूँ और तुम भी इस सब दुखों से जाकर प्रभु के वचन का पालन कर सकते हो। When you are being harassed in the office and you have problems at home with your wife or your children, or even in the church or any other place, there are financial difficulties. Bible says, rejoice in the Lord always. आपके जीवन में हो सकता है आपके दफ्तर में सताव आ रहे हैं और बहुत सारे परसिक्यूशन आ रहे हैं, और हो सकता है आपके घर में भी हो रहे होंगे, लोग सता रहे होंगे या परिवार से, लेकिन आप उस परिस्थिति में भी प्रभु में आनंद रह सकते हैं। Why we can rejoice? Because Jesus Christ is our Lord and He is in charge of every situation of our life. क्यों हमें सदा आनंदित रहना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के चरवाहा है, वो हमारे जीवन को नियंत्रण रखते हैं। So then we also become rejoicing Christians.
और फिर हम क्या हो जाएंगे, फिर भी हम आनंद रहेंगे और एक मसीह बन जाएंगे जो सदा आनंदित रहने वाला मसीह बन जाएंगे। So, so we are not people when everything is good, we learn to sing the praises of God. But when things are not good, also we will praise the Lord. और हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि सब सिचुएशन परिस्थिति सब अच्छा जाए तभी हमें आनंदित रहना, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हमें हर एक परिस्थिति में प्रभु में सदा आनंदित रहना चाहिए। So A.W. Tozer said, "See, if you cannot praise God on Monday to Saturday in all the problems in life, you cannot praise God only on Sunday, because that will not be true praise." और A.W. टोजर जो भाई थे वो बता रहे थे कि सिर्फ संडे ही आपको आराधना करना जरूरी नहीं, बल्कि मंडे से जो सैटरडे सोमवार से जो शनिवार करते वो उस दिन क्या करते उस दिन आराधना प्रभु करना वो आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट है। As we go through all the struggles and problems and uncertainties of life, we know that Jesus Christ is in charge of our life and He is loving us and caring for us. That's why we will praise Him. और बहुत सारे हम खतरों से जाते हैं, बीमारियों से, दुखों से और सताव से जाता है, तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा नियंत्रण करता है और हर उस परिस्थिति में भी आप आनंदित रह सकते हैं। So then, when we do that, we find our lifestyle becomes a one of praising God automatically, and we stop grumbling and complaining and blaming other people. और जब हम इस प्रकार से जीवन जीते रहेंगे तो हम दूसरों पे दोष लगाना बंद कर देंगे और हम अपने प्रभु में बहुत ही आनंदित से जीवन जिएंगे। So this is how we have to grow in the grace of God, my dear brothers, every day as we start practicing in the small things of life. और इस प्रकार से हम प्रभु के अनुग्रह में बढ़ सकते हैं भाइयों, जब हम छोटे छोटे जीवन में जो हमारे जीवन में आते हैं परिस्थितियां, परमेश्वर को पालन करके हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। Even our thoughts will go far away from the worldly things that we are thinking about into more on spiritual things and the ways of God. और हमारा जो मन है वो संसार की चीजों में जाता है, लेकिन परमेश्वर के चीजों में जाना चाहिए जिससे आत्मिक चीजें की उन्नति हो। There are so many things for us to practice. बहुत सारी बातें हैं जो हमें पालन करना भी आवश्यक है। And then as we practicing that, we can encourage our brothers and sisters also. और जैसे ही हम उसका पालन करते हैं, प्रोत्साहन पाते हैं, वैसे ही हम भाई बहनों को भी प्रोत्साहन दे सकते हैं। So they also can practice. और फिर वो भी भाई जो है उनका अभ्यास करके जीवन में जिएंगे। For example, to practice self-control. जैसे कि एक संयम के ऊपर हमें प्रयास करने के बारे में है। First thing is self-control in eating and drinking. पहला जो हमें संयम रखना है, खाने पीने पर संयम रखना है। Then we will control our body weight also. Our weight will come down. If we are overweight, will come down. और हम जब इस पे संयम रखेंगे तो हमारा जो शरीर का वजन है वो भी कम हो जाएगा। Then we can do some little exercise, go for walks, and that also is a self-control. And we like to sleep and just lie down all the time, be very lazy. और हम जो है वॉकिंग करने भी जा सकते हैं, व्यायाम करने जा सकते हैं, और क्योंकि कई बार हम बहुत सोना पसंद करते हैं और उसमें आलसीपन हो जाता है और जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। Then because of that, we get all sort of diseases also, high blood pressure and joint pain and so many other things. और इस ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो बहुत सारा हमारे जीवन में बीमारियां आएगी, जैसे कि ब्लड प्रेशर आएगा और बहुत सारे ऐसे अलग अलग बीमारियां आ जाएंगी। The Apostle Paul always said about hard work is very good for us. और प्रेरित पौलुस हमेशा हमें प्रोत्साहन देते हैं कि मेहनत करना बहुत ही आवश्यक, क्योंकि हमारे लिए लाभदायक है। And also on what we are eating and drinking. और उसमें भी जो हम क्या खाते हैं क्या पीते हैं उसमें भी ध्यान देना जरूरी है। And self-control in the matter of money. और पैसों के मामले में भी संयम रखना बहुत आवश्यक है। We are all burning money, but then God, we have to give an account to God and don't waste our money on unnecessary things. और हम सब जो है पैसा कमाते हैं, हमारे पास पैसे, लेकिन एक दिन हमें सब पैसों का हिसाब देना होगा। So we have to be faithful in that, but that is also a big practice. और इसलिए हमें इस सब बातों में विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। So many other things, practice coming on time for the meetings. और जैसे कि समय पे सभा में आना, ये भी हमें अभ्यास करना है। So sometimes we have a bad habit of coming late and we have to try to come early. और कई बार हमारा जो जीवन में है बहुत सारे बुरी आदतें हैं, और क्योंकि हम कई बार मीटिंग में बहुत लेट आते हैं, पीछे से आते हैं। There are so many things, brothers and sisters, brothers, we have to learn to practice.
और इसलिए बहुत सारे ऐसे बातें हैं भाइयों जो हमें जीवन में सीखना बहुत आवश्यक है। To get knowledge is very easy, ज्ञान लेना बहुत आसान है, but the practical knowledge is a little difficult. लेकिन जो हम अभ्यास करते हैं जो हर दिन के जीवन में, वो कठिन है। Jesus first practiced, then he taught. यीशु मसीह ने पहले पालन किया, फिर उन्होंने प्रचार किया। But now, among modern Christians, they keep on talking a lot and they practice very little. लेकिन आज के आधुनिक समय में ऐसा हो रहा है कि लोग प्रचार ज्यादा कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, लेकिन वो अपने जीवन में पालन बिल्कुल नहीं करते हैं। In Ephesians, the Apostle Paul said, chapter 5, verse 1 said, "Be imitators of God as beloved children." और इफिसियों के अध्याय 5 में वचन 1 बताता है, इसलिए प्रियो बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो, उनका अनुकरण करने वाले बनो। And another place he said, "Be imitators of me, even as I follow me, even as I follow Christ." और एक जगह ऐसा बताया है प्रेरित पौलुस ने कि मेरा पीछा करो जैसे मैं मसीह का पीछा करता हूँ। Nowadays, there are very few good examples even among Christian leaders. आज बहुत सारे मसीह जगत में बहुत ही कम ऐसे उदाहरण हैं, मिलते हैं। Most of the Christian leaders are after money and after honor. बहुत सारे जो है जो प्रचारक हैं वो पैसे के पीछे भागते हैं। Even if we don't have any any good leaders to be an example, Jesus will always be an example for us. और हो सकता है कि आप पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन आप मसीह के लिए एक सच्चा उदाहरण बन सकते हैं। The Holy Spirit, God, when we start practicing, God loves us and He will help us all the more. क्योंकि पवित्र आत्मा जो है हमें हमेशा हमें प्रोत्साहन करता है और हमें मसीह में बढ़ाता है। Practicing is hard work and God loves hardworking people. और जो अभ्यास करना है जो है बहुत कठिन है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको मेहनत उस पे करने के और उस पे आगे बढ़ने में सहायता करेगा। God is very happy when we humble ourselves. परमेश्वर बहुत ही आनंद होते हैं जब हम अपने आप को उनके अधीन में नम्रता से जीवन जीते हैं। Unbelievers and carnal believers think that we are very foolish, but God thinks we are very wise and we are very happy when we humble ourselves. और जो लोग प्रभु को नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, अविश्वासी लोग, वो हम लोग को मूर्ख समझते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि परमेश्वर का जो है राज कितना अद्भुत है। So as we practice, we become like Jesus Christ. जैसे ही हम पालन करते जाते हैं तो हम यीशु के स्वभाव में बदलते जाते हैं, And we can be a blessing to others. और इस प्रकार से हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। Amen. So we can hear Brother Atmaswamy share and other brothers can share one by one. अपना जीवन में प्रभु हमको क्या क्या सिखा रहा है. There are so many practical things God is speaking to us. So let us encourage one another as God speaks to us. From the word of God or from your example, anything, कुछ भी बोल सकते हैं. I thank God for today's encouraging words. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज की प्रोत्साहन भरे वचनों के लिए। So, humility in our Christian life is very, very important. और नम्रता जो है मसीह जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। Moses was very humble man. मूसा जो था बहुत ही नम्र व्यक्ति था। Jesus is our example for humility. और यीशु मसीह जो है हमारे नम्र जीवन जीने के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। If we see all godly men's life, their secret of their successful Christian life is humility. और जितने भी ईश्वरीय व्यक्ति हैं सबके जीवन में जो सफलता है वो एक ही है, वो है नम्रता। Isaiah 57 verse 15. यशायाह के वचन में हम 57 में जाएंगे, वचन 15। Please read, brother. यस। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को मैं आनंदित करूं। Yes. God will come near and live those people who have humble in their heart. और परमेश्वर जो है उनके हृदय में आते हैं, उनके जीवन में आते हैं जो नम्र हैं हृदय से। We know that God gives grace to the humble. हम सभी जानते हैं
कि परमेश्वर जो है अनुग्रह सिर्फ नम्र लोगों को ही देते हैं। 1 Peter 5:5 says, be clothed with humility. और ये पहला पत्रस 5:5 में कहता है कि अपने आप को नम्रता को पहन लो। That is why we have to put on humility, my dear brothers. और इसलिए हमें हम नम्रता को अपने जीवन में पहनना बहुत जरूरी है भाइयों। We think real of ourselves. और जब हम उस सिचुएशन में आते तब हम अपने आप को देख पाते हैं कि हम कहाँ पर हैं। We will not think high about ourselves. और हम अपने आप को ऊंचा नहीं समझेंगे। And humble people always obey God's word. और नम्र व्यक्ति ही जो है परमेश्वर के वचन को पालन करता है। Will not doubt God's word. और वो परमेश्वर के वचन पर कभी भी संदेह नहीं करता है। From this we come to know that whether we are humble or not. और इस प्रकार से हम अपने आप को जांच पाएंगे कि हम सच में परमेश्वर के अधीन में नम्रता से जीवन जी रहे हैं या नहीं। Humble people never care about anything in their life. और नम्र व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में किसी भी बात की चिंता नहीं करता है। Because they fully, completely trust in God's strength, God's grace. क्योंकि वो अपने जीवन में पूर्ण तौर से प्रभु परमेश्वर पर विश्वास से जीवन जीता है। Whatever God allows, they will give thanks. और जो भी परमेश्वर उसके जीवन में परिस्थितियों को लाएंगे, उस परिस्थितियों में भी वो हमेशा प्रभु के प्रति धन्यवादी रहता है। They easily obey elders of the church. और वो अब हमेशा आसानी से और नम्रता के साथ अगुवाओं का पालन करते हैं। They don't have any murmurs in their heart. और उनके हृदय में कोई भी करबाहट या शिकायत और ऐसी कोई भी प्रकार की कुड़कुड़ाहट नहीं है। So this is the secret of Christian life, my dear brothers. और यही है मसीह जीवन का एक रहस्य है भाइयों। If we submit the mighty hand of God humbly, then God will one day exalt us in और His यदि time. हम प्रभु परमेश्वर के अधीन होकर नम्रता से जीवन व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर हमें अपने समय में ऊंचा उठाएंगे। Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. वो स्थिति है जो मैं आज शेयर करना चाहता हूँ वो है कि सिंस मोर देन अ मंथ मैं वीकडेज को सुबह उठ के आफ्टर डिवोशनल्स और बिफोर डिवोशनल समटाइम्स मैं वॉक पे जाता। वो अर्ली मैं जाता था हमारे जो रोड के था बाहर, वो बाहर की तरफ। पिछले 2 हफ्तों से मैं बाजू में एक पार्क है, वॉकिंग पार्क, वहां पर मैं करके हाफ एन आवर वॉकिंग करके फिर मैं घर पे आता हूँ। तो उससे मुझे ऐसा एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी मिलती है कि ना हाँ आज मैंने एक्सरसाइज किया है, मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम स्ट्रांग हुआ है। कुछ टाइम पहले मैं बहुत एंग्शियस होता था कि क्या मेरा वेट कम होगा, क्या मैं फिट बनूंगा कि नहीं करके, लेकिन ये सब टेंशन हुआ मेरे को। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर पतला हुआ या नहीं हुआ, मैं जो सही चीजें वो करूंगा, मैं चलूंगा, अपने फिटनेस के लिए चलूंगा। ऐसा नहीं है ना मेरे को कुछ ऐसा ही मैन बनना है, ऐसा कुछ फिट बनना है, मेरे को पतला बनना है और अपने घर पे काम आना है, मतलब घर के कुछ काम काज के लिए या फिर ऑफिस में कुछ काम काज के लिए। आई नीड माई हार्ट एंड माई माइंड टू बी स्ट्रॉन्ग, हार्ट लंग्स एंड एवरीथिंग वैसा। और थोड़ा स्ट्रेचिंग भी करता हूँ मैं 30 मिनट्स वॉकिंग के बाद, थोड़ा बहुत नेक शोल्डर्स थोड़ा स्ट्रेच करता हूँ। तो उससे मुझे ऐसे ये एक मालूम पड़ा लेसन, वो हमें अगर हम लोग ऐसे कुछ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो स्पेशली बाहर जाके, तो हमें जो सेक्सुअल टेम्पटेशन कम होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को बाहर लोग दिखते हैं, स्पेशली मैं जहाँ पे आता हूँ वहाँ पे मोस्टली एल्डरली लोग आते हैं, जो नाना नानी रहते हैं वो लोग सब। तो उससे हम लोगों को देख के हम लोग को एक एनकरेजमेंट मिलता है कि लोग यहाँ पे जा रहे हैं, एल्डर्स, नॉट द चर्च, एल्डर पीपल आर गोइंग वैसा। तो यूजुअली सैटन हमें कभी अटैक करता है जब हम डिस्करेज्ड हो तभी। तो अगर हमने बहुत खा लिया है पेट भर के
और बहुत उदास है हम लोग, बहुत डिस्करेज्ड है, तभी हम लोग को मन, हाँ चलो यूट्यूब देखते हैं, फिर हम लोग ऐसे मन, हाँ कुछ और देखते हैं, कुछ मैसेज सुनते हैं, कुछ गाना सुनते हैं, लेकिन फिर हम लोग को वो देखते देखते हम लोग को मन आता है, अरे क्या मैं ये देखूं, कुछ फ्लैश होता सपोज, क्या मैं ये देखूं कि क्या मेरा विक्ट्री है कि नहीं करूं, तो वो टाइम पे हम लोग मोस्ट वल्नरेबल रहते हैं। तो इसलिए मैंने जैक को भी एक बार सुना है मैसेज में बोलते हुए, तो अगर हमें कोई ऐसा टेम्पटेशन हो तो हमें सीधा एक स्कूटर का राइड या गाड़ी का राइड लेके आना चाहिए, या फिर एक वॉक करके आना चाहिए, या फिर कोई ब्रदर या सिस्टर को फोन करके बात करना चाहिए, वैसा सम प्रैक्टिकल स्टेप्स, जिससे वो क्या होता है जब हम लोग ये सब देखते हैं गंदी चीजें, तो हमारे ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है, डोपामाइन करते हैं, उसके एडिक्शन होता है हम लोगों को, वो किसी और चीजों में हम लोग को भी कर सकते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो एंडोर्फिन्स, डोपामाइन, ये सब हमारे सिस्टम में आते हैं, हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई आता है, हार्ट का जो कोलेस्ट्रॉल है कम होता है, और हम फ्रेश रहते हैं पूरे दिन के लिए। तो ये मैं बोलना चाहूंगा, अब मैं सबको बोलना चाहूंगा, अगर आप पतले या मोटे जो भी हो, कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी करो, आप कुछ तो, अब आप घर के अंदर भी कुछ कर सकते हो काम, वो बहुत अच्छा है सेहत के लिए। आमीन। हेलो, प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. बोला प्रभु को धन्यवाद देता हूँ मैं। आज फिलिप्पी 4 में जो बोला है, हम प्रभु को स्वीकार किया और प्रभु को आइकना, ये सब हमारे ख्याल में रहना चाहिए और वैसा हम करना चाहिए। क्योंकि जब नोहा प्रभु के वाणी सुन रहा था, जब परमेश्वर ने उसे बोला है मैं ये देह का नाश, तो ऐसा ऐसा एक तारू बनाओ, एक तारू का मैप, एक तारू का नक्शा उन्होंने परमेश्वर ने नोहा से दिया, और उसी तरह से जो परमेश्वर से वाणी ऐकता था वैसे ही कर रहे था। आज भी हम प्रभु से बात करने के लिए प्रभु से बोलता है, हम सुनना चाहिए। मैं आज मत्ती को सुवर्तमान 8वां अध्याय पढ़ रहा था, मत्ती को सुवर्तमान 8वां अध्याय और उसका 8 वचन। आठ वचन क्या बोल रहा है? तेव्हा शतापतीने उत्तर देऊन म्हटले, हे प्रभू, तू माझ्या छपराखाली यावे असा मी योग्य नाही, पण शब्द मात्र बोल म्हणजे माझा चाकर बरा होईल। शताब्दी है, वो शताब्दी ने क्या बोला है? प्रभु, हमारे छप्पर में आना मैं लायक नहीं, लेकिन तुम्हारा शब्द है और शब्द मात्र बोल। ये शब्द क्या है? गॉड का शब्द है, परमेश्वर का शब्द है। ये शताब्दी ने स्वतः से पालक लिया। मैं एक आदमी को जा बोलता है, एक आदमी को आ बोलता है, लेकिन मेरी अधिकार पेक्षा प्रभु का अधिकार शब्दों में है। फक्त एक शब्द बोल मेरे चाकर के लिए। अब हम ऐसा ही प्रभु ने शतापति को बोला, ऐसा विश्वास इस्राएल में देखा नहीं। क्यों जब हम अपने तरह देखता है तब हम सोचना चाहिए मेरा प्रभु कैसा है, मेरा प्रभु बड़ा है, उसका शब्द सामर्थ्यवान है। क्योंकि अभी स्तोत्र संहिता 107 में एक वचन है, स्तोत्र संहिता 7 और 20 वचन। तो आपले वचन पाठवतो आणि त्याच्या नाशापासून त्यांना सोडवतो। प्रभु
आपलं वचन पाठवतो आणि त्यांना बरे करतो. यानी कि प्रभु का शब्द हमारे पास आता है, तब हम सुनना चाहिए। प्रभु थैंक यू, प्राइज लॉर्ड। अभी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ने जब शमूएल अध्याय 15 में जब बोला है, जब ये वफा की अपेक्षा परमेश्वर का वचन ऐकना ही अगदी अच्छा है, क्योंकि प्रभु के मुख में जो निकलता है वो हम सुनने का और आचरण करने का और स्वीकारने का, ये चाहिए आज का समय है। मैं जो आज मत्ती कुटुंब पढ़ रहा था, मुझे बहुत आनंद मिला है, क्योंकि आज प्रभु ने इस शताब्दी को क्या किया है। मेरा विश्वास इस्राएल में ऐसा मिला नहीं, क्योंकि पहले वो शताब्दी है अपने घर के लोगों को नहीं आया, खाली अपने के लिए आया है। ये तो बड़ा बड़ा सुनने के लिए बहुत बहुत हमारे के लिए वो अच्छा है, क्योंकि जब हम सब हमारे लिए बोल रहा था, तब प्रभु को कुछ नहीं सुन रहा था। फिर हम दूसरे के लिए प्रे कर रहा था, दूसरे के लिए प्रभु के मांग रहा था, तब प्रभु सुन रहा था। प्रभु ने बोला है वचन को हम स्तुति करेगा। आमीन। आमीन, आमीन। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। कुछ वचन मुझे भी शेयर करने के लिए तो परमेश्वर ने मुझे वचन से बात कर रहे थे, उसके द्वारा मुझे प्रोत्साहन मिला। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 15 में जो 33 लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो। तो ये वचन से मुझे प्रोत्साहन मिल रहा था कि अभी के समय में मैं जिस जनरेशन में हूँ, जिस सेंचुरी में हूँ, मैं देख सकता हूँ कि हर जगह मनुष्य का जो अंतिम समय में है, हृदय बहुत कठोर हो गया है। मतलब इस सिचुएशन में लोग पाप में जीना ज्यादा आनंद कर रहे हैं, लेकिन प्रभु ने मुझे बात किया है कि वचन में बताता है कि तुम धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो आत्मिक चीजों में मैं देखता हूँ कि प्रभु मुझे बचाते हैं, और संसार के लोग, इवन मेरे फैमिली मेंबर्स, इवन मेरे रिलेटिव्स बहुत सारे हैं जो अभी भी पाप में आनंद ले रहे, लेकिन उनको लगता है मैं नरक में जाऊंगा, मेरे लिए ठीक है। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते उनके, क्योंकि जब तक वो क्या बोलते हैं, वो पाप का जो परिणाम है और वो परमेश्वर को प्रेम को नहीं जान पाते, तब तक इस सच्चाई तक वो पहुंच नहीं पाते। तो मैंने देखा कि बहुत सारे मनुष्य जो है शेयर किया, जब भी मैं गॉस्पेल शेयर करता हूँ तब से नेगेटिव रिस्पॉन्स ही ज्यादा आता है, और लोग जो है मुझे पागल बोलते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं और गुस्सा भी होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे मालूम पड़ जाता है कि परमेश्वर का वचन कितना सत्य है, और अंतिम दिन में मनुष्य जो है बहुत कठोर हो रहा है। लेकिन मुझे प्रभु प्रोत्साहन दे रहे, तुम जागते रहना, प्रार्थना करना और बुरी संगति से भागना, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगी। तो मैं देखता हूँ, जब मैं आंखों से इस जिस जगह में रहता हूँ गुजरता हूँ, लोग कोई मूवी देखने में, पिक्चर देखने में, और कोई मूर्ति पूजा में आनंद में मगन है, बहुत सारे डीजे गाना, बहुत सारे पाप में। लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस सब से छुड़ाया, मैं बहुत ही आभारी हूँ। और परमेश्वर मुझे एक दूसरों के लिए उदाहरण बनाए, इससे मैं प्रार्थना करता हूँ। और भी वचन है जो मुझे हेल्प किया था। परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा है, रोमियो के अध्याय 1 में मैं पढ़ रहा था, 1 में 25, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की, ना कि सृष्टिकर्ता की सर्वदा धन्य है। तो ये भी परमेश्वर हमें प्रोत्साहन दे रहे थे कि अपने हृदय में भी कोई भी ऐसे आइडल्स मूर्ति नहीं रखना है, क्योंकि सारा संसार जो है चीज, मिट्टी और पत्थर और ये सब चीज का आराधना करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आत्मा और सच्चाई से आराधना करके प्रभु के लिए जीना है। तो ये बहुत मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है, क्योंकि मैं भी एक समय था जब अंधकार में था, लेकिन परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, और अभी तक भी संभालते हैं। जब भी सिचुएशन ऐसा आता है टेम्पटेशन का, परमेश्वर हमें वचन से बात करते हैं और मुझे उस सिचुएशन से मुझे निकाल लेते हैं। तो एक और वचन है, वो 1 शमूएल में है, वो हम सब जानते हैं, 16 में 7, पीपल लुक एट द
आउटवर्ड अपीयरेंस बट द लॉर्ड लुक्स एट द हार्ट। तो परमेश्वर, मनुष्य जो है बाहर ही दिखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखते हैं। तो वो आने वाले जजमेंट को कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए प्रभु प्रोत्साहन दे रहे, तुम जागते रहना, विश्वास रखना। हो सकता है तुम्हारे फैमिली मेंबर नहीं भी आए, हो सकता है वो नरक में जाना चाहते हो, फाइन नो, लेकिन तुम मेरे प्रति विश्वास योग रहना। और मेरे, क्योंकि मैं जो मेरे लिए प्राण देगा वो अपने आप को बचाएगा। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। हालेलुया, आमीन। हेलो या बोला। हेलो। हाँ, प्रभु को धन्यवाद हो। मैं कुछ वर्तमान उसका 14 चैप्टर और आवाज नहीं आ रहा है ब्रदर, आवाज बराबर कट हो रहा है, कट हो रहा है। हेलो। हाँ अभी आ हेलो। रहा है ब्रदर आवाज? हाँ हाँ ठीक है, आज अभी अच्छा है। तो ये वचन मैं सुबह पढ़ रहा था, तो पहला वचन में लिखा है, तुमचे अंतःकरण घाबरू नये, देवावर विश्वास ठेवा आणि माझ्यावरही विश्वास ठेवा। तो इधर प्रभु बात कर रहा है कि अंतःकरण मतलब घाबरू नहीं, मतलब डरने का नहीं है और विश्वास रखने का। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ तो ऐसी सिचुएशन आती है वो, और उसका 27 लिखा है, तो ये प्रभु का वाणी सुना मैंने, तो हम हमारे जीवन में ऐसे कभी भी सिचुएशन आती है, तो प्रभु का आपको एक धीरज रखने वाला एक अभिवचन कट हो गया। अच्छा, और कोई भी शेयर कर सकता है तो शेयर कर लीजिए। बस आपका ब्रदर, आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा है, बहुत कट हो रहा हेलो। है। हाँ, बीच बीच में जा रहा है। ठीक है ब्रदर, ओके। हाँ, एनीबडी एल्स, जल्दी करो 1-2 मिनट के लिए। मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं अभी रिसेंटली नंबर्स और ड्यूट्रॉनोमी का बुक के थ्रू जा रहा हूँ, तो मुझे काफी चीजें वहां से परमेश्वर के वचन से मुझे मेरे मन को भा रहे थे। मैं गिनती के पुस्तक में देख रहा था कि कैसे परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र देश से वादाए जमीन पर लाते हैं। तो उस समय वो लोग को जो उनका जो सफर होता है, वो सफर में बहुत सारे मुश्किलें, बहुत सारे कठिनाइयां होते हैं। और हम लोग अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं कि परमेश्वर जानबूझ के उनको ऐसे सफर से लेकर जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो था वो चाहता था कि वो बाहर आए, उनके हृदय को जांचना चाहता था। तो मैं देखता हूँ कि कितने बार जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में, प्रॉब्लम्स में, और इंग्लिश में जैसे बोलते हैं इनकन्वीनियंस, मतलब हर चीज एकदम आसान नहीं होना, लेकिन कई बार जीवन में बहुत सारी चीजें बहुत मुश्किलें होती हैं। हो सकता है कि किसी और के जीवन में कुछ चीजें बहुत आसान हो और हम लोग देखते हैं कि हाँ उसका जीवन कितना आसान है, लेकिन हम लोग के जीवन में हो सकता है कि हर बात पे, हर मोड़ पे कुछ ना कुछ मुश्किल, कुछ ना कुछ कठिनाइयां आती रहती हैं। तो ऐसा लगता है कि क्यों हो रहा है, लेकिन परमेश्वर जानबूझ के वो अनुभव, वो अनुमति देता है, ताकि ये सब के जरिए हम लोग के अंदर जो हमारा पाप है, जो हमारा सच्चाई है, वो बाहर निकलता है। और जब वो बाहर आता है तो हम लोग या तो उसको अनदेखा कर सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं हाँ परमेश्वर, ये है मेरे अंदर का असली रूप, ये है मेरे अंदर जो मैं सच में हूँ, मुझे इससे तू छुड़ा और मुझे तू बदल। तो ये एक चीज था, और भी चीजें हैं लेकिन अभी टाइम कम है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और दूसरा है वही नंबर्स में और व्यवस्था वरण में भी परमेश्वर बार बार इजरायलियों को बोलता है कि ये जो वादा जमीन है उसको तुम्हें जाके प्राप्त करना है, उसके ऊपर तुम्हें जाके कब्जा करना है, और वो जमीन मैंने तुम्हें दिया है। वहां पे बहुत सारे दुश्मन हैं
लेकिन वो सभियों को मैं तुम्हारे सामने हरा दूंगा। और जब तुम एक बार वो जमीन पे चले जाओगे तो उनके जितने भी तौर तरीके थे, उनके जितने भी मूर्तियां हैं, जो चीजें हैं, उनको तुम्हें पूरी तरीके से नाश करना है। एक भी उनका चीज को तुम्हें छोड़ना नहीं है, क्योंकि आगे जाके तुम फिर वो चीज तुम्हें फंसा सकती है वापस। तो परमेश्वर के अनुग्रह से मैं भी जैवन जीवन के अंदर थोड़ा अनुभव कर रहा हूँ, और परमेश्वर के ये वचन जब मैं पढ़ रहा था मेरे को बहुत एनकरेजमेंट मिल रहा था। परमेश्वर बोल रहा है कि हम सभी के लिए, कि जो प्रॉमिस लैंड है हम लोग के लिए विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ है। परमेश्वर कहता है कि ये मैंने तुम्हें दिया है, लेकिन तुम्हें अंदर जाके इसको प्राप्त करना है, तुम्हें इसको जाके कब्जा करना है। इजरायलियों को भी अंदर जाना पड़ा, ऐसा नहीं कि वो लोग ऐसे खड़े खड़े उनके हाथ में जमीन आ गई, उनको भी अंदर जाना पड़ा, लड़ना पड़ा। और जब वो लड़े परमेश्वर के अनुग्रह से, तो परमेश्वर ने उनको जीवन दिया, उनको वो जमीन दिया। तो उसी तरीके से ये जो विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ है, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है मेरे लिए। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं ये पाऊं, और परमेश्वर मेरे साथ है मुझे ये दिलाने के लिए। तो ये विश्वास के साथ बिना डाउट किए मुझे आगे बढ़ते जाना है। और जब मैं आऊंगा ये जमीन में थोड़ा थोड़ा करके, तो जैसे वो परमेश्वर ने कहा कि पुराने कोई भी चीजें थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए, पूरा उसका नाश करो, वैसे ही हर एक जो चीजें हैं जो परमेश्वर के खिलाफ है, उसका पूरा तरीके से मुझे नाश करना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा रख के उसके बाद समझौता करना, नहीं, हर चीज से मुझे नाश करके परमेश्वर की ओर पूरी तरीके से समर्पित रहना, ये मुझे शेयर करना है। Yeah, praise the Lord, brothers. And तो मीटिंग के लिए प्रभु धन्यवाद करें। सो लेट अस लड़ते रहना प्रभु के लिए, हर चीज के ऊपर जो हमको नीचे लेके आता है, हर पाप से और हर बुरी आदतें से प्रभु हमको ताकत देंगे। हम नम्र होंगे तो प्रभु हमको और कृपा देंगे हर परिस्थिति में। तो लेट अस बी एनकरेज्ड। इवन हमको प्रैक्टिस करना बाइबल रीडिंग करने, कभी कभी लोग बाइबल छोड़ते हैं, कभी प्रार्थना नहीं करते हैं। बाइबल ये जब कितना हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हम बेहतर होंगे, प्रभु के करीब आ जाएंगे। जैसे हमने बोला कि प्रार्थना में बाइबल रीडिंग में आप लोग एटलीस्ट रीड वन न्यू टेस्टामेंट एक सुबह और शाम को पढ़ लीजिए। जैसे वी हैव सेड, एक टाइम टेबल दिया मैंने, एक्ट्स पढ़ो और रोमन्स पढ़ो, एक एक चैप्टर रोज। एक्ट्स वो 28 चैप्टर्स है, ऐसे एक महीने में पूरा हो जाएंगे। और रोमन्स और फर्स्ट कोरिन्थ एक एक चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको कितना, न्यू टेस्टमेंट आप लोग ज्यादा टाइम नहीं तो न्यू टेस्टमेंट आप पे कॉन्सेंट्रेट कर लो, क्योंकि वो यही प्रभु का वचन है। सो ओल्ड टेस्टमेंट वी कैन रीड स्लोली ऑल्सो, और ज्यादा टाइम मिले तभी आप कई